Good morning, student. So in our previous class we have discussed about the remainder theorem. Now here we are present with the factor theorem. Okay, what is the factor theorem? So if px is the polynomial, if any polynomial px is given whose degree is either equal to 1 or more than 1, okay, that means ki any polynomial that we have to take, its degree should be either 1 or more than 1. Okay, so if x minus a is the factor of the px, we also discussed about the factor. What is factor? So we have discussed factor is that number that divide the other number completely. Example, 2 is the factor of 4. Why we say that 2 is the factor of 4? Because 2 divides 4 completely. So if x minus a is the factor of px, then in that situation if you divide px by x minus a, then definitely our remainder is 0. Because if we say 2 is the factor of the 4, and if we divide 4 by 2, see here, this is 2 2s are 4, so here we see the remainder is what? Remainder is 0. Similarly, if px is the polynomial, any kind of polynomial, suppose I write example x square minus 2x plus 4. So here we see that this is the polynomial whose degree is what? 2. So we have to take the polynomial whose degree should be either equal to 1 or more than 1. Okay, so suppose here we have taken the polynomial, and suppose this polynomial divided by x minus a, and also we see that if x minus a is the factor of the polynomial, that means कि अगर ये x माइनस ए इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो, तब क्या होगा कि x माइनस ए से जैसे ही दैट मीन्स कि इस पोलिनोमियल में जैसे ही x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे, आवर रिमाइंडर व्हाट? आवर रिमाइंडर बिकम्स 0. ओके, सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर. मान लीजिए कि ये आपका पोलिनोमियल है, अगर x माइनस ए से आप इसको डिवाइड करते थे तो क्या करते थे? मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज अ काइंड ऑफ पोलिनोमियल. ओके, एंड सपोज इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन फाइंड द रिमाइंडर. सो इन प्रीवियस क्लास वी लर्नड हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते हैं. इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका पोलिनोमियल है एंड इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो जिस चीज़ से ये डिवाइड होगा उसको क्या करेंगे? इक्वल टू हम लोग 0 कर लेते थे. ओके, उसके बाद यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को निकालते थे, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द x वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पोलिनोमियल. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू इस 2 को यहाँ पे रखो आप. So this is 2 square minus 4 into 2 plus 4. So this is 4 minus 8 plus 4. 4 cancel and your remainder is 0. Okay. So this is the way to find the remainder. कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल को अगर आप x minus 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर निकालना है. तो one method is division method, but if it is asked to find the remainder by using the remainder theorem, तो जिस पोलिनोमियल से उसको डिवाइड करना है, मान लो कि x माइनस 2 से आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो जिस चीज़ से डिवाइड करना है पहले उसको आप इक्वल टू 0 करो, वहाँ से उस x के वैल्यू को निकालो, और इस x के वैल्यू को जैसे ही आप गिवन पोलिनोमियल में पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर. क्लियर? सो दिस इज द वे टू फाइंड द रिमाइंडर if one polynomial is divided by the other polynomial using remainder theorem. Okay, so that concept we have to apply in the factor theorem also. So what the factor theorem says that if any polynomial whose degree is either 1 or more than 1, and if you say that x minus a is the factor of the given polynomial px, then the remainder is always 0. What is pa here? This pa is the remainder. Okay, so if x minus a is the factor of px, then the remainder of the polynomial is always 0. यानी रिमाइंडर जो आपका होता है वो हमेशा 0 होता है. क्लियर? कि अगर ये x माइनस ए px का फैक्टर है तो इस कंडीशन में वी कैन से दैट द रिमाइंडर इज ऑलवेज 0. एंड व्हाट इज pa हियर? दिस pa इज द रिमाइंडर. दिस pa इज द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज 0. क्लियर?
तो हाउ टू फाइंड द एनी क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्टर थ्योरम, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे. सी व्हाट द क्वेश्चन इज, if x minus 1 is the factor of this polynomial, clear, if x minus 1 is the factor of this polynomial then find the value of the k. that means कि अगर ये x minus 1 इस polynomial का क्या है, फैक्टर है, तो you have to find the value of the k. so सबसे पहले क्या करते हैं कि let's this polynomial, it's we have to give the name to this polynomial and let we give the name, this is px. so let your px is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. okay, now this is given in the question what x minus 1 is the factor of the px. ये जो x minus 1 जो आपका है इस px का क्या है, फैक्टर है. ओके तो कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते थे कि ये जो है इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कैसे निकालते थे कि सबसे पहले इसको जीरो करते थे. सो पुट x minus 1 इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट x इज इक्वल टू 1. तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा. नाउ टू फाइंड रिमाइंडर इस x के वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखना पड़ेगा. तो जैसे ही x इज इक्वल टू 1 आप इसमें रखोगे तो यहाँ पे जैसे ही x की जगह आपका 1 आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका p1 हो जाएगा. ओके तो p1 जो है वो क्या है, दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल. सो p1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ इसमें x था वहाँ वहाँ आप 1 रखोगे और जैसे ही सॉल्व करोगे तो p1 जो होगा ये आपको 3 प्लस k मिल जाएगा. ओके once again I repeat, what is p1, this is the remainder, this is your remainder. okay so what the factor theorem says that कि if x minus a is the what factor of px, अगर ये x minus a इस px का फैक्टर है then what is the remainder, the remainder is 0. okay so remainder is 0 according to factor theorem. if x minus a is the factor of px then remainder is 0. so here we find p1, this is the remainder. so here is the remainder. then we write here since x minus 1 is the factor of px. okay ये x minus 1 क्या है, इस क्वेश्चन में इसका फैक्टर है. okay and since p1 is the remainder then here we see that what remainder is 0. तो p1 को 0 करके p1 के जगह पे जो वैल्यू आपका आया है दिस इज 3 प्लस के, आप यहाँ पे 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 करो एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k विच इज इक्वल टू -3. ओके वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर इज दैट काइंड ऑफ नंबर और द वेरिएबल विच डिवाइड द अदर नंबर कम्प्लीटली. यानी कि फैक्टर उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि बोलते हैं कि व्हाट कि अगर ये x माइनस a जो है px का फैक्टर है तो px में जैसे ही x माइनस a से आप डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा. क्लियर, यानी कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर तभी होता है जब वो नंबर उस नंबर को कम्प्लीटली क्या करे, डिवाइड कर दे. जैसे मान लो बोलते हो क्या कि 16 इज़ द फैक्टर ऑफ 32. सपोज 16 इज़ द फैक्टर ऑफ 32. 16 जो है 32 का फैक्टर है, तो क्या होगा कि 16 से जैसे ही 32 में आप डिवाइड करोगे यू विल गेट व्हाट, रिमाइंडर इज 0. ओके सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव अप्लाइड हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द k. ओके एनी प्रॉब्लम माय डियर? आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगा. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? ओके थैंक यू.